Good morning, dear students. Welcome back once again to these video lectures of the subject code 1004, that is communication skills in English. We are about to finish our first unit, communication theory and practice, and under this we are having this chapter number 1.3, art of effective communication. In the previous slides you have already learned the importance of communication, and I'm very sure that you must have a fair idea about when a communication gets wrong and when it becomes misunderstood or people don't understand what you actually want to say. There are many aspects that we have already discussed, and there are many things that are very new for you, and already we have a lot of examples in between that we try to understand what actually communication theories are and how we need to practice them in our regular, or we can say day-to-day practical life. The impact that communication has on our personality is beyond our imagination. We even can't imagine what communication can do magical for us, what communication do good for us, and even on the other hand how communication can affect our professional lives or professional self, how a bad communication can result in some problems related to our jobs, personal relationships, friendships, everywhere. So that is why it is called an art, and it is important for every student to understand how effective communication takes place. Therefore, in order to make you capable of understanding all the aspects of communication, there is very important topic added in the syllabus this year, and that topic is how to frame good question and how to answer. This is very important for you to learn how good questions are framed and how good replies are given. That is why the title of this topic is framing of questions and answers, and as usual I have prepared two videos on this topic, and in the first one we will just generally go about the art of asking effective questions. Why is it important to ask questions and how this can be improved if we are not good askers, I can say, if we are not very curious about asking questions. So there are some important tips along with some important quotations that I will tell you. So let's start with our slide. Garbage in, garbage out is a popular truth, often said in relation to computer systems. जब आपने कंप्यूटर्स की क्लासेस अटेंड की होंगी, आपके टीचर्स ने जब आपको कंप्यूटर्स के बारे में बताया होगा, तो ये गीगो, GIGO, एक गीगो का कॉन्सेप्ट आपको दिया होगा, और उस गीगो कॉन्सेप्ट में आपने सीखा होगा कि जैसा आप कंप्यूटर को इनपुट देंगे वैसा ही वहां से आउटपुट हमें मिलेगा. Whatever information you want, you have to put the right information so that the right answer comes out, so the right data comes out. That is what we say garbage in, garbage out. अगर कूड़े जैसी कोई बात डालोगे जो आपके काम की नहीं है, तो वहां से भी वही बात सामने आएगी जो आपके काम की कभी नहीं होगी. If you put the wrong information in, you will get the wrong information out. Remember, this is so important, क्योंकि आजकल हम कुछ भी सर्च करते हैं
हम गूगल पर जाते हैं, गूगल पर हम ट्राई करते हैं कि हमें कुछ अच्छा सा हमारे हेल्प के लिए मैटर मिल जाए। सर ने अगर कोई ऐसे लिखने को दिया है पोल्यूशन के ऊपर, आप जाते हैं और वहां पोल्यूशन के ऊपर एक ऐसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक आपके सामने सही ऐसे नहीं आएगा, या यूं कहिए कि उसके बारे में सही डेटा नहीं आएगा, जब तक कि आप सही तरीके से वहां पर प्रॉपर कीवर्ड्स डालेंगे। आपको वहां पर एप्रोप्रिएट, सही, बिल्कुल आपके काम के जो कीवर्ड्स हैं वही आपको गूगल सर्च बार में डालने होंगे। उसके बाद ही गूगल आपको वही इंफॉर्मेशन देगा जो आपको एक्चुअली चाहिए। सो दिस इज द लॉजिक, गार्बेज इन गार्बेज आउट, पुट द राइट इंफॉर्मेशन एंड गेट द राइट इंफॉर्मेशन। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू कम्युनिकेशन इन जनरल। अब बात आती है कि हम कंप्यूटर से हटकर या अपनी आम बोलचाल में अगर आए तो जो हमारे लिए काम का हो सकता है वो क्या है। इफ यू आस्क द रॉन्ग क्वेश्चंस, you will probably get the wrong answer, or at least not quite what you are hoping for. Suppose you are going to some new city and there you want to ask an address to some stranger going on the road. So if you ask him properly, like giving the name of the person, giving some clue about the society or the colony he lives in, then only the person will be able to tell you the right person that you are asking for. आप अगर उसको सही तरीके से एड्रेस बताएंगे कि ये एड्रेस पे मुझे जाना है, तो आपको वो सही एड्रेस पे पहुंचा देगा। या आपकी क्वेश्चनिंग अगर सही होगी कि ये कहाँ पर पड़ता है, इधर से हम जाएंगे तो राइट में जाएं या लेफ्ट में जाएं, अगर आप सही तरीके से पूछेंगे तो सही तरीके से आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी। बट अगर आपको ही क्वेश्चन पूछना नहीं आ रहा, अगर आप यही नहीं समझ पा रहे कि वो क्वेश्चन मुझे क्या पूछना चाहिए, अगर आप लैंग्वेज ही सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो यू विल नेवर बी एबल टू रीच द राइट person. That is what I am asking you. If you ask the wrong questions, you will probably get the wrong answer. Asking the right question is at the heart of effective communications and information exchange. तो सही प्रश्न पूछना एक बहुत इफेक्टिव तरीका है सही कम्युनिकेशन करने का. By using the right questions in a particular situation, you can improve a whole range of communication skills. पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन में अगर आप राइट क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को रियल में बहुत ही बेहतर बनाएंगे और आप बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछकर उसका सही आंसर भी प्राप्त करेंगे. So that is the importance of asking questions effectively. Now, here are some famous quotes given by some scholars who have worked on the communication and also worked amongst the people, so they from their experiences have given some quotations. Let's discuss the first quotation here. The key to wisdom is this: constant and frequent questioning, for by doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth. This quotation is by Peter Abelard. So what he has said is, उसने क्या कहा है कि विजडम के लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है लगातार अच्छे क्वेश्चंस का पूछा जाना. क्योंकि जब हमारे दिमाग में डाउट आता है तो हम प्रश्न पूछने के लिए तैयार करते हैं खुद को, और अगर हम सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम सत्य को खोज पाते हैं, हम सही आंसर प्राप्त कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू डू नॉट नो how to ask the right question, you discover nothing. W. Edwards Deming.
डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग का कहना है कि अगर आपको सही क्वेश्चन नहीं पूछना आता तो आप कुछ भी नहीं खोज पाएंगे। सत्य की खोज उन्होंने ही की है जो क्यूरियस रहे हैं और जिन्होंने सही समय पर सही लोगों से सही प्रश्न किए हैं। ऐसे कुछ नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो हैं वो बचपन से ही बहुत ज्यादा इनक्विजिटिव थे। उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने की आदत थी। उनके जो गुरु थे उन गुरु से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और हर क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर जानने की भी लगातार कोशिश की। महात्मा गांधी जी भी बचपन से बहुत ज्यादा क्यूरियस हुआ करते थे चीजों के लिए। उनके मन में जो भी कोई डाउट आता था उस डाउट को लेकर वो अपने मम्मी पापा से, उनके जो माता पिता थे, उनसे वो क्वेश्चंस पूछ लिया करते थे। अब किसी भी बड़े, किसी भी फेमस व्यक्ति की आप जीवनी निकाल के देखिए, आप उनके बारे में पढ़ के देखिए, तो आपको एक ही चीज नजर आएगी और वो है उनका सही समय पर सही क्वेश्चन पूछा जाना। क्वेश्चन पूछना उनकी महानता का प्रतीक बन गया। ये चीज डिस्कवरी कब होती है? जब आप क्यूरियस होते हो, जब आप क्वेश्चंस पूछते हो और जब आपको जवाब मिलते हैं। A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer. A wise man can learn more from a foolish question. एक बुद्धिमान व्यक्ति एक मूर्ख प्रश्न से भी बहुत कुछ सीख सकता है, जबकि एक फूल जो है, मूर्ख व्यक्ति जो है, वो कभी भी अच्छे आंसर से भी कुछ नहीं सीख पाता। ब्रूस ली जो एक बहुत अच्छे कराटे चैंपियन रहे हैं, उनकी काफी सारी मूवीज भी आपने देखी होंगी, तो ब्रूस ली का ये एक अच्छा स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन इज अ वाइज मैन्स क्वेश्चन कंटेन्स हाफ द आंसर। एक जो वाइज व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसके प्रश्न में ही, उसके क्वेश्चन में ही आधा आंसर छुपा होता है। और ये कहा है सॉलोमन एफ गैब्रियल ने। ये कुछ कोटेशंस है जिन्हें आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं, एंड दीज कोटेशंस आर लाइफ चेंजिंग कोटेशंस। नेक्स्ट quotation is successful people ask better questions and as a result they get better answers. जो सफल लोग होते हैं वो बेटर क्वेश्चन करते हैं दूसरों के बजाय, उनसे कुछ अच्छे ही क्वेश्चन करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दे गेट बेटर आंसर्स, और बिल्कुल उसके परिणाम स्वरूप उन्हें अच्छे आंसर्स भी मिलते हैं। दिस कोटेशन इज बाय एंथनी रॉबिन्स। The art and science of asking questions is the source of all knowledge. टॉमस बर्जर की एक कोटेशन मेरी फेवरेट कोटेशन है। उन्होंने कहा है द आर्ट एंड साइंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, कि अगर आपको कोई भी नॉलेज का सोर्स प्राप्त करना है या कहीं से भी नॉलेज गेन करनी है, तो आपको क्वेश्चनिंग की आर्ट और क्वेश्चनिंग का साइंस दोनों ही आना चाहिए। It is not the answer that enlightens, but the question. यून। इनका एक बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि एक आंसर इतनी खुशी हमें नहीं देता जितना एक क्वेश्चन हमें देता है कि वो क्वेश्चन सही पूछा गया है या नहीं। He who asks a question is a fool for 5 minutes. He who does not ask a question remains a fool forever. ऐसा व्यक्ति जो कि क्वेश्चन पूछता है वो केवल 5 मिनट के लिए मूर्ख कहलाएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कभी
क्वेश्चन ही नहीं पूछता वो जिंदगी भर के लिए फूल कहलाता है, क्योंकि वो उस बात को अपने मन में रख के बैठा है, उस क्वेश्चन को अपने मन में रख के बैठा है जिसके उसको कई जवाब मिल सकते थे, जिससे कि उसके कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल सकते थे। दैट्स व्हाई नेवर हेजिटेट फ्रॉम आस्किंग अ क्वेश्चन, ऑलवेज get prepared to ask questions, always get prepared to get good answers by asking good questions. Even in your class के अंदर जब टीचर्स आपसे कोई डिस्कशन करते हैं या कोई डिस्कस करते हैं चीजों को, उस डिस्कशन के दौरान वो ये कहते हैं कि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। तो हम भी ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हमारा स्टूडेंट से एक क्वेश्चन होता है तो वहां स्टूडेंट पलट कर, बहुत कम ऐसे होते हैं जो कोई क्वेश्चन हमसे कहते नहीं सर समझ में आ गया, बट एक्चुअली उन्हें समझ में नहीं आया हुआ होता है। क्योंकि ये बात पक्की है कि जिसे समझ में आ गया वो जरूर कोई ना कोई पहलू ऐसा पूछेगा, वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कस करेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जिससे ये क्लियर होगा कि उसे समझ में आया या नहीं आया। That makes the framing of questions and answers so important for you in your studies, in your daily communications, in your problem solving. Next. Now, here are some techniques that you can learn and improve the way you ask questions or generally you reply. First type is closed ended questions, or simply we can say closed questions. क्या होते हैं closed question? ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किस तरह से अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं क्वेश्चंस पूछने में। पहला टाइप है क्लोज्ड क्वेश्चन, यानी बंद प्रश्न। अ क्लोज्ड क्वेश्चन यूजुअली रिसीव्स अ सिंगल वर्ड और वेरी शॉर्ट फैक्चुअल आंसर। क्लोज्ड क्वेश्चंस आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट डिस्कशन बट दे डोंट गिव यू मच इंफॉर्मेशन। क्लोज्ड क्वेश्चन जो हैं वो जनरली वो होते हैं जो कि एक शॉर्ट डिस्कशन के लिए पूछे जाते हैं, या सिर्फ आप एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आंसर लेने के लिए, तब वहां पर क्लोज्ड क्वेश्चंस काम आते हैं। सपोज समवन इज आस्किंग यू फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टिल यू आर आस्किंग आर यू थर्स्टी, तो आंसर क्या आएगा? आंसर सिर्फ हाँ या फिर ना होगा। द आंसर विल बी आइदर यस और नो। अब ये क्लोज्ड हो गया, मतलब इसका दो ही आंसर निकल सकता है, क्या तुम प्यासे हो, या तो वो बोलेगा हाँ और या बोलेगा ना। यहां ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लिमिटेड आंसर देते हैं, जो आपको रिस्ट्रिक्टेड आंसर देते हैं, वो कहलाते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस की एक बात और जो मैंने नोट में नीचे डाल रखी है, कुछ क्लोज्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका सही आंसर देना, चाहे वो यस या नो में ही क्यों ना हो, वो कभी पॉसिबल नहीं होता। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू स्टॉप्ड स्टीलिंग, क्या तुमने चोरी करना बंद कर दिया है? अब ऐसे क्वेश्चन का अगर कोई आंसर देगा तो वो डबल माइंडेड होगा कि मैंने चोरी की ही कब, जो मैं कहूं कि हां, या फिर मैं अगर कहूं नहीं तो मैं आज भी चोर साबित हो जाता हूं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेम में आती है, जहां पर ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं जिन्हें यस या नो के अलावा किसी और आंसर में देना पॉसिबल नहीं होता। प्लस अगर आप उसका आंसर यस देते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होती है, और अगर आप उसका आंसर नो देते हैं तब भी आपको
प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे क्वेश्चन से हमें बचना चाहिए। वी शुड नॉट यूज दिस टाइप ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन in the mind of the person who is going to answer it. Hope you understand. Next one is open-ended questions, or simply we can say open questions. Open questions elicit longer answers. जो open questions होते हैं उनमें हमें कुछ लंबे जवाब मिलते हैं, कुछ ऐसे जवाब मिलते हैं जो हमें डिटेल देते हैं। दे यूजुअली बिगन विद व्हाट, व्हाई, हाउ, एक्सेट्रा। एन ओपन क्वेश्चन आस्क्स द रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट का मतलब होता है जवाब देने वाला, फॉर हिज और हर नॉलेज, ओपिनियन और फीलिंग्स। जो ओपन क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें कुछ रिप्लाई मिलते हैं जिनमें ओपिनियन आती है, जिनमें फैक्ट निकल कर आते हैं, जिनमें किसी चीज का नॉलेज छुपा होता है। जैसा कि बहुत सिंपल शब्दों में, जब भी आप किसी व्यक्ति से, नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आपका पहला सवाल होता है व्हाट्स योर नेम। इसका मतलब कोई ना कोई आंसर आपको नाम के रूप में मिलेगा, कोई ना कोई डेटा आपको मिलेगा, कोई ना कोई फैक्ट आपको मिलेगा। अगला प्रश्न आपका आता है वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। ऑब्वियसली किसी न किसी टाउन का नाम बोलेगा, किसी न किसी गांव का, किसी गली का, किसी घर का नाम वो आपको बताएगा। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ऑब्वियसली देयर विल बी सम आंसर टू दिस इन द फॉर्म ऑफ अ नेम, कोई ना कोई नाम निकल कर आएगा। ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, ओपन क्वेश्चंस है। टेल मी and describe can also be used in the same way as open questions. आप चाहें तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस को टेल मी से, डिस्क्राइब से, डिस्कस से, इस तरीके के वर्ड्स को यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसा यहां दिया गया है, what happened at the meeting, how was the presentation, टेल मी वॉट हैपेंड नेक्स्ट, आगे बताओ क्या हुआ, मीटिंग में क्या हुआ, प्रेजेंटेशन कैसी रही, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेज इन मोर डिटेल। अच्छा और बताओ, यानी हम उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, हम उसे ये चीज पूछने के लिए बार बार, बताने के लिए बार बार बाध्य कर रहे हैं कि कैसी रही चीजें, प्रेजेंटेशन कैसा रहा, मीटिंग में कैसा है उसने काम किया, मीटिंग में उसने क्या रिप्लाई दिए, मीटिंग में उसे क्या सीखने को मिला। ये सारी की सारी बातें उसे बताने के लिए कुछ लंबे आंसर्स देने होंगे, कुछ इलैबोरेशन करना होगा आंसर्स का। ये सब किसमें आएंगे, ओपन क्वेश्चन में। तो फर्क समझिए, आपने अगर किससे पूछा डिड यू अटेंड द मीटिंग, कैसा क्वेश्चन है ये, डिड यू अटेंड द मीटिंग, क्या तुमने मीटिंग अटेंड की, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस। तो उस क्वेश्चन का रिप्लाई होगा यस या नो, हाँ मैंने मीटिंग अटेंड की, या वो कहेगा मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की। और अगर उसने मीटिंग अटेंड की है उसके बाद आप ओपन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हाउ वाज द मीटिंग, हाउ वाज योर प्रेजेंटेशन, आगे क्या बताया है उन्होंने, और बताओ आगे वो क्या चाहते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने तुमसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा, तुमने उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा, ब्ला 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 ब्ला, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। सो देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड टू यू। क्लियर? आई एम वेरी श्योर this difference between closed questions and open questions will be clear to you in the next slide. Here we go. Closed questions are good for, हम closed questions कब पूछ सकते हैं, testing your understanding or the other persons, जैसा कि so if I get this job, if I get this qualification,
आई विल गेट अ गुड जॉब। अच्छा, अगर मैं ये पढ़ाई कर लूंगा तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। ऑब्वियसली वो पर्सन कहेगा यस, व्हाई नॉट। तो ये जो चीज है ये क्या है? क्लोज क्वेश्चन। आपको पता है कि इसका आंसर यस या नो में ही आएगा, बट यू जस्ट वांट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग और द पीपल यू आर टॉकिंग टू। कंक्लूडिंग अ डिस्कशन और मेकिंग अ डिसीजन। या तो आप किसी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं या फिर आप किसी डिसीजन के बारे में, कोई फैसले के बारे में उनको बताते हैं। जैसा कि नाउ वी नो द फैक्ट्स, आर वी ऑल एग्रीड दिस इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। जैसा कि अब हम सारे फैक्ट्स को जान चुके हैं, तो क्या अब हम तैयार हैं सही डिसीजन लेने के लिए? तो आंसर आएगा यस या आंसर आएगा नो। थर्ड वन इज फ्रेम सेटिंग, और यू कैन से ओपिनियन पूछना, और यू कैन से एक फीडबैक लेना। आर यू हैप्पी विद द सर्विस फ्रॉम योर बैंक? आपको आपकी बैंक से जो सर्विसेज मिल रहे हैं, क्या आप उनसे हैप्पी हैं? आर यू हैप्पी? या तो आप कहेंगे यस या आप कहेंगे नो। आप ये नहीं कहेंगे मैं तो इस बैंक का पुराना कस्टमर हूं, मैं तो आता रहता हूं, जाता रहता हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैंक कैसे सर्विस दे रही है। नो, आपको सिर्फ एक जवाब देना है, आर यू हैप्पी और नॉट, यस या नो। दो ही आंसर आपके हो सकते हैं। तो क्लोज क्वेश्चन यहां पर काम आता है। अब बात करते हैं ओपन क्वेश्चंस की। डेवलपिंग एन ओपन कॉन्वर्सेशन। एक कॉन्वर्सेशन को ओपन करने के लिए, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर स्टूडेंट्स। कोई मुझसे पूछे कि आप अपने स्टूडेंट से क्या उम्मीद करते हैं, क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो मैं उनको काफी सारी चीजें बताऊंगा। मेरी अपने स्टूडेंट से काफी आशाएं हैं। मैं चाहूंगा कि वो सबसे पहले एक अच्छे नागरिक बने, दूसरे नंबर पर मैं चाहूंगा कि वो अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, तीसरे नंबर पर मैं चाहूंगा कि वो अपनी पढ़ाई के साथ पूरी तरह से जस्टिस करें, चौथे नंबर पर मैं चाहूंगा कि वो पढ़ाई को इस हद तक लेकर जाएं कि उन्हें एक अच्छी जॉब मिले और वो एक रेप्यूटेड पर्सन बनकर दिखाएं। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस जो मेरी रहेंगी, उन सारी एक्सपेक्टेशंस को मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। तो बन गया ये ओपन एंडेड क्वेश्चन। दूसरा जो इसका यूज होता है वो होता है कहीं से भी कुछ और सूचना एकत्रित करने के लिए, टू फाइंड आउट मोर डिटेल्स। जैसा कि व्हाट एल्स डू वी नीड टू डू टू मेक दिस अ सक्सेस। किसी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं और वहां किसी ने पूछ लिया कि हम और क्या कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ऐसा क्या है जो और ज्यादा किया जा सकता है जिससे हमें अच्छी सफलता मिले। फाइंडिंग आउट द अदर पर्सन्स ओपिनियन और इश्यूज। कुछ लोगों से आप किसी इश्यू के बारे में, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में आप जानना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? What do you think about these problems? What are your opinion about the noise pollution in our colony? What are your feelings about nationalism? What are your plans in the next 5 years? ऐसी चीजें जो आप किसी से जानना चाहते हैं, ऐसी चीजें जो आप किससे इलेबोरेट करवाना चाहते हैं, ऐसी चीजें जिन पर आप बहुत ज्यादा उनसे बातचीत करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें ओपन एंडेड क्वेश्चंस में डिस्कस की जा सकती हैं। तो इस प्रकार हमने एक बहुत नई चीज, एक बहुत ही काम की चीज आज हमने सीखी फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स में, कि क्लोज क्वेश्चन क्या होते हैं और ओपन क्वेश्चंस क्या होते हैं। क्लोज क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हमने देखे, ओपन क्वेश्चंस के एग्जांपल हमने देखे, क्लोज क्वेश्चंस क्यों काम में लिए जाते हैं और ओपन क्वेश्चंस कहां
क्यों, कब इनको काम में लिया जाता है, ये हमने सीखा। तो इसी के साथ मैं आपसे फिर एक बार अलविदा चाहता हूं। आई बेग योर पार्डन कि मैं ज्यादा लंबा आज नहीं इसको मैं डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और इन्हें आप जितना छोटा छोटा करके पढ़ेंगे उतना आपके लिए ज्यादा समझ में ही आएगा। सो टिल देन, गुड बाय, स्टे सेफ एट होम, टेक केयर, अपने हाथों को धोते रहें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, अपने आसपास सफाई रखें और हर तरह से कोरोना से बचकर रहें। पढ़ाई जरूर करें, पढ़ाई करते रहें, कीप स्टडिंग, मोटिवेट होते रहें इन वीडियोस को देखकर। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।